Hello students. So in the line of lectures of NCERT book Physics 12th standard, we are here with chapter number 9, Ray Optics and Optical Instruments. So in this chapter, first of all, some introduction is there. So what is light actually? किस चीज को हम लाइट बोलते हैं? तो लाइट हम बोलते हैं जो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक है, उसको हम लाइट बोलते हैं और वी से दैट दिस इज विजिबल टू अस and therefore it is called visible light. So as we know, the light is an electromagnetic wave, so velocity of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Because the wavelength of the light is very small, that means light seems to travel along a straight line path. But in fact, it is not so. Light bends towards from certain corners, and that phenomena is known as diffraction. But because the wavelength of the light is very small as compared to the object which are being seen, so light seems to travel along the straight line path. And that straight line path is known as ray of light. Okay. And if we take the bundle of rays of light, then this is called the beam of light. Okay. We know that the light undergoes reflection, refraction, dispersion, and polarization, interference, and diffraction phenomena. And about the reflection phenomena and refraction phenomena, we have already studied in our previous classes, and dispersion also we have read. But what about the polarization, interference, and diffraction phenomena? Light also shows these phenomena, and that we will be studying in a separate chapter known as wave optics. So in this chapter, we are going to study the phenomena of reflection, refraction, and dispersion. Okay. So in reflection, refraction, and dispersion phenomena, we use ray picture of light. We are saying that light travels in a straight line, and light consists of rays, and bundle of rays is known as beam. So that picture we are using, and we will be studying the phenomena of reflection, refraction, and dispersion. And in a separate chapter, as I told you, of wave optics, we will use the wave picture of light. As we know that the light is an electromagnetic wave, so by its wave nature, it is showing certain properties, and these properties are discussed as light shows the phenomena of the polarization, interference, and diffraction. Okay. So students, let's start with our first topic known as the reflection of light by spherical mirrors. Reflection of light by plane mirrors you have already read, and in the previous classes. Here we are studying about the spherical mirrors, reflection of light by the spherical mirrors. So as in the plane mirror case, there are laws of reflection for the light. What are the first law of reflection? First law of reflection is angle of reflection is equal to angle of incidence. What is this angle of reflection and angle of incidence? Students, see this figure. In this figure, this is the incident ray and this is reflected ray. This is a mirror. So ray is coming incident on the mirror and is reflected at this point, and this in between perpendicular line normal to the mirror is known as normal. So this at the point of incidence we have drawn a normal. Okay. So the angle between the incident ray and the normal, this is called the angle of incidence. This is called the angle of incidence. And the angle between the reflected ray and the normal,
this angle shown, it is the angle of reflection. So the first law of reflection is that angle of reflection is equal to angle of incidence. Both these angles will be same. Whatever angle of incidence will be there, the angle of reflection will be same. So what is the second law of reflection? Second law is that incident ray, reflected ray, and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane. That means we will see in this figure the incident ray is coming and the reflected ray is reflecting, and this is a normal. So these three lines, incident ray, normal, and reflected ray, they will lie in a plane as shown in this figure. You are seeing that this is a plane. Okay. These three must lie in one plane. These are the two laws of the reflection. Okay. Now, what about the sign convention in that? Sign convention means what are the किस चीज को आप प्लस साइन देंगे, किस चीज को आप माइनस साइन देंगे, ये साइन कन्वेंशन. द वेरी सिंपल साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स इज यूज्ड and that is Cartesian sign convention. What is Cartesian sign convention? You know the Cartesian coordinate geometry. See, this is plus x axis and this is minus x axis. This is plus y axis and downwards is minus y axis. So the midpoint means the intersection point of both the axis x and y axis is known as the origin, and here the origin will be the pole of the mirrors and lenses. We are studying here the mirrors and lenses. So first of all, we are studying about the mirror. So this intersection point is this pole P as shown here in this figure. You see my cursor? This is the P. So what is the sign convention? Distances measured in the direction of incident ray are positive. That means we are measuring from the pole and we are measuring towards the right side, means we are putting the zero of the scale at P and we are measuring in the right direction. Then in that case, that distance will be taken as positive. Otherwise, we are putting this scale zero of the scale at point P and we are measuring leftward this way, means so that will be given negative sign. So distances measured rightwards are positive and distances measured to leftwards are negative. Now, as you have shown seen in your previous classes, how the ray diagram was made. See, the mirror was shown here, mirror was in front of you, and the object was kept left side. Okay, object was kept left side. So a sign convention, this sign convention says that the ray will be coming from here and will be reflected from the mirror and it will reflect back. Okay, so the distances measured along the direction of the incident ray, means rightwards along the direction of incident ray, are positive, and distances measured against the direction of incidence ray, means this side, left side, that will be negative. Okay, now similar is the sign convention for the heights. हाइट के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये रेड लाइन से दिखाया है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजर किया जाता है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स मेजर किया जाता है तो वो नेगेटिव होगा. आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑल द पोजीशंस ऑफ द मिरर्स and lenses, concave mirror and convex lenses, and convex mirror and concave lenses also. Okay,
So you should have remembered all the positions. Okay. So this sign convention is simple. This is a Cartesian sign convention. The distance which is measured upward from the principal axis is positive. The distance measured rightwards or towards the incident ray is positive. Otherwise, negative. This is the sign convention basically. This is called Cartesian plane. Okay, XY plane. Now, what is the focal length of the spherical mirror? So before studying about the focal length, we should know what are the paraxial rays. Paraxial rays क्या है? Paraxial rays are the rays incident close to the pole and making small angles with the principal axis. So you see here this ray. This ray is going and this is very near to the principal axis, and it need not be parallel, but it should make very small angle with the principal axis and should reflect, and it will reflect back to the focus. Okay, all the rays which are paraxial will converge to the focus. Now I have shown here another ray which is far away from the principal axis, this yellow color principal axis. Okay, this ray is far away from the principal axis and this is not paraxial, and after reflection it will not necessarily go from the focus. You see, it is passing from another point. Okay, that is why we are having a problem known as aberration. Aberration means spherical aberration. इसमें कोई सर्कल होगा तो वो अपने को एलिप्स जैसा दिखेगा, ओब्लॉन्ग दिखेगा, राइट? तो ये जो प्रॉब्लम आती है मिरर्स में वो स्फेरिकल एबरेशन कहलाती है, राइट? तो we will consider only the paraxial rays in our discussion, because paraxial rays after reflection goes from the focus or appear to go from the focus in the case of convex mirror. Here we have shown the concave mirror. Okay, concave mirror कैसा होता है भैया? Concave mirror I have shown here. This is a concave mirror. So this side polish will be there. This side polish will be there and reflection from this cave type surface. That is why this is known as concave mirror. Convex mirror क्या होता है? I will just draw it here for you. Convex mirror will be like this, and this side polish will be there, and the reflection will be from the convex side. Therefore, it is known as convex mirror. So this way you can remember the word convex and concave. केव से आप अंदाजा लगा सकते हैं, केव माने होता है गड्ढा या गुफा, ठीक है? तो ये जो केव है, केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके लिए ये कॉनकेव मिरर है, अदर साइड पॉलिश है. यहाँ पे कॉन्वेक्स मतलब जो उभरी हुई साइड है वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है और अदर साइड जो है पॉलिश्ड है, ठीक है? तो ये हो गया पहचानने का तरीका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचानेंगे. अब देखिए, रेज in the concave mirror are actually meeting at the focus. Whatever rays will be there, one more ray I will show you. Suppose I make this ray is going not necessarily parallel, this ray going here at somewhat this point, but with after reflection it will go from the focus, back from the focus. So many rays will be coming and reflecting from the mirror and will be passing through the focus. Necessarily they must be paraxial rays. They must follow the definition and they must fall into the category of the paraxial rays as I have discussed. Okay, then only they will pass through the focus. Other rays may not necessarily pass through the focus. Okay. So concave mirror and convex mirror. In concave mirror, rays are actually meeting at the focus. But in convex mirror, rays will appear to be meeting at the focus. This ray will reflect
This ray will reflect like this in such a way that will be coming from the focus. This will be focus. So the rays appear to come from the focus, and therefore this is apparent. This focus is apparent. This is not the real focus because rays are not actually converging. But in this case, after reflection, rays are converging to the focus. Okay, so this is a real focus, focal point. So focal plane क्या होता है भाई लोग? Focal plane क्या है? Reflected rays converge or appear to converge at a plane passing through focus, which is normal to the principal axis. और इस सेंटेंस को समझने के लिए हम देखेंगे ये फिगर. देखिए, ये रेज आ रही हैं और ये रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकल प्लेन से ही जाएंगे, चाहे पेरेक्सियल है और नॉन पेरेक्सियल रेज हो, दे विल पास थ्रू द फोकल प्लेन. ओके, तो ये जो प्लेन है which is perpendicular to the principal axis is known as focal plane. This plane passes through the focus. Okay, this is a focal plane. Okay. Now, in the previous classes also you have studied this question. Show that radius of curvature is equal to 2 times focal length for the mirrors. Mirrors means concave mirrors as well as convex mirrors. Okay. What is radius of curvature? See, this spherical mirror, this concave mirror is a part of the sphere. This is a cut part of a sphere. और जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, तो उस स्फीयर के सेंटर से ये पोल तक की जो डिस्टेंस है वो इस स्फीयर की रेडियस होगी और इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अपने को ये शो करना है भैया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज डबल द फोकल लेंथ, और इन अदर वर्ड्स फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इसको प्रूव करने के लिए सी दिस डायग्राम. अब ये डायग्राम बनाने के लिए भी लॉस हैं, आपको लॉस बताए गए थे पिछले क्लास में. The ray which is parallel to the principal axis after reflection will converge on the focus or appear to converge on the focus. पहला रूल ये है. इसका उल्टा रूल क्या बनता है? The ray which is passing through the focus after reflection, it goes away and parallel to the principal axis. It goes back parallel to the principal axis this way. ठीक है. दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल जो है, यहाँ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ तो ये सी पे एक पॉइंट बनाया मैंने, तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट होता कोई तो ऑब्जेक्ट के पास से हम रेज चलाते, एक पैरेलल रे चलाते और एक सी से पास होती हुई रे चलाते, तब जो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्शन होता रिफ्लेक्टेड रे का, वहां पे इमेज बनती. ये सारे डायग्राम्स बनाने का प्रैक्टिस आप 10th क्लास में कर चुके हैं. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सिंगल रे बताइए. The ray parallel to the principal axis after reflection going from the focus this way. ठीक है, ये रे इधर जा रही है. अब यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट ऑफ द मिरर है, दिस पार्ट जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट होगा, ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. ये रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये इधर चली गई है. राइट, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल जो बनेगा, ये नॉर्मल होगा, ये CM इज द नॉर्मल टू दिस स्मॉल प्लेन मिरर. ये जो कि इस स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा सा पार्ट है, ये एक प्लेन मिरर है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा CM. ठीक है, नॉर्मल. अब इस फिगर में देखिए, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये जो नॉर्मल है, मैंने CM नॉर्मल बोला, इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज थीटा. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये फोकस से जाएगी और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी थीटा होगा. तो ये थीटा है, तो ये बाजू वाला भी थीटा है और बीच में है नॉर्मल. ठीक है,
दूसरी ज्योमेट्री देखिए, दिस रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल एंड सी एम इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल थीटा, सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। ठीक है, अब ये थीटा हो गया। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अब ये ज्योमेट्री देखिए, ट्राइंगल एम सी एफ में, ट्राइंगल एम सी एफ में ये एंगल थीटा है। ठीक है, सी एम एफ एंगल इज थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो, बराबर। और एंगल एम सी एफ दिस इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल बताया है एम एफ पी, ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल है। एम एफ सी ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, एंड एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो थ्योरम लगेगी। इसके लिए ये थीटा और ये थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। ये बात समझ में आई। नाउ वी विल टेक टू ट्राइंगल्स, यहां से एम से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एम डी। नाउ दिस इज अ पैरेक्सियल रेस, सो डीपी जो है ना, ये बहुत ही स्मॉल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर and we'll take this MD distance. Now take two triangles MFD and MCD. Take these two triangles और इनमें tan थीटा फॉर्मूला लगाइए। तो ट्राइंगल MCD जो है, MCD ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल थीटा बना हुआ है, तो tan थीटा कितना हो गया, MD अपॉन CD, बराबर। ट्राइंगल MFD, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है जिसमें 2 थीटा एंगल बना हुआ है, tan 2 थीटा कितना हो गया बच्चों, MD अपॉन FD। ये MD अपॉन FD इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला 2 बार लगाया। नाउ इफ फॉर द पैरेक्सियल रेस थीटा विल बी स्मॉल एंड देयरफॉर tan थीटा को हम थीटा ले सकते हैं, राइट। सो हम इसको लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD, इसको लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन FD। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये वाली रख दो, थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD यहाँ पे रख दो, तो 2 टाइम्स MD अपॉन CD इज इक्वल टू MD अपॉन FD, MD कैंसल्स आउट एंड वी गेट 2 अपॉन CD इज इक्वल टू 2 अपॉन FD, 1 अपॉन FD। अब ये CD क्या है देखिए, C से लेके D तक की डिस्टेंस, DP छोड़ दिया है, तो DP जो है नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं CD इज इक्वल टू CP इफ वी नेग्लेक्ट DP। तो ये क्या है, C क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए C से P की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो ये जो है CD को हम लिख दिया CP और इसकी जगह लिख दिया R, राइट। FD क्या है, ये जो FD लिखा हुआ है ये क्या है, FD देखिए ये F है और ये D है, राइट। तो FD जो है FP के बराबर है, DP इज नेग्लेक्टेड। FD जो FP के बराबर है, तो FP क्या है भैया, FP है फोकल लेंथ F, बराबर है। FP जो है फोकल लेंथ F है, तो हमने यहां रख दिया, ये देखिए फोकल लेंथ F, ये FD की जगह FP हो जाएगा, ये FP है तो उसकी जगह F रख देते। 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन F, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2F एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, now students let us discuss the mirror equation. Mirror equation क्या है, mirror equation relates the object distance, image distance and other things. ठीक है, so let us see in this triangle, we will refer to this figure. Let me enlarge a little bit. Separate figure, I am using this figure. So in this figure triangle देखिए, ये छोटा वाला triangle जो दिख रहा है A dash B dash F, ये वाला triangle छोटा वाला, और इसके सामने वाला ट्राइंगल देखिए FMP। ये दोनों ट्राइंगल जो है देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सेम हो जाएंगे, ये 90 90 है। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो मान लो, और ये डिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो जाएगी लाइक बिफोर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कैसे हैं, सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर A dash B dash अपॉन MP, देखिए A dash B dash अपॉन दिस MP इज इक्वल टू क्या हो गया, B dash F अपॉन FP हो गया, B dash F अपॉन FP। अब MP जो है, ये MP ये किसके बराबर है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है AB इसके बराबर,
देखिए इसमें रे डायग्राम बनाया गया है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा रे डायग्राम बनाने का रूल्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस आर्टिकल। यहाँ से रेस चलाई गई, कैसे रे डायग्राम बना, इमेज ये कैसे हो गई, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश है, बराबर है। ये कैसे बन गई वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, पहले देख लीजिए। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो गया, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ये बी डैश एफ अपॉन एफ पी हो गया। अब बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी डैश एफ को लिखेंगे बी डैश पी माइनस एफ पी, बराबर है ना। और बी डैश पी देखिए क्या है, बी डैश पी है वी, मतलब ये इमेज की डिस्टेंस पोल से इमेज डिस्टेंस कहलाती है, उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से मेजर की जा रही है यू, ये जो ये कहलाती है यू, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो दो ट्राइंगल में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हमारे पास क्या आ गया, बी डैश पी माइनस एफ पी, इसको मैंने लिखा है बी डैश एफ को, बी डैश एफ को लिखा है क्या, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी, ये इक्वेशन 1 कर दिया मैंने इसको। अब हम देखेंगे दो ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये नीचे वाला येलो कलर का ट्राइंगल और ये ऊपर वाला ब्लू कलर का ट्राइंगल देखिए, ठीक है। इन दोनों में क्या है सिमिलरिटी, देखिए ये रे इधर से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो हियर, so angle of incidence, angle of reflection will be same, taking a plane mirror at P, simple plane mirror, okay, laws of reflection follow हो रहे हैं। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल 90 हो गया, ये देखिए 90 है, और तीसरा एंगल भी बराबर हो गया। तो एंगल 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 क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल येलो वाला और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे, और ये सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से हम इसमें रेशियो लिख लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब छोटे ट्राइंगल का ये वाला परपेंडिकुलर साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का ये वाला बेस बी डैश पी अपॉन बड़े ट्राइंगल का बेस बी पी, ये देखिए लिख दिया मैंने बी डैश पी अपॉन बी पी। मतलब दोनों में हमारा रेशियो क्या आ गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी पहले पेयर ऑफ ट्राइंगल से आ गया, और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दूसरे पेयर ऑफ ट्राइंगल से आ गया, ठीक है। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो ये देखो लेफ्ट साइड में लिख दिया मैंने और ये लिख दिया मैंने राइट साइड में, इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के साथ में अगर लेंगे तो बी डैश पी कितना हुआ, देखो फिगर में बी डैश पी ये कितना हुआ भैया, ये जो है हमारा माइनस वी, साइन कन्वेंशन के साथ में हम पी से मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड मेजर करेंगे इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस वी हो गया। एफ पी कितना हुआ, एफ ये रहा पी ये रहा, ठीक है, एफ पी हो गया एफ, तो वी विल मेजर फ्रॉम पी लेफ्ट साइड एंड देयरफॉर इट विल बी माइनस साइन माइनस एफ। व्हाट इज बी पी, ये बी है और ये पी है, देखिए बी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। इट इज अगेन मेजर्ड फ्रॉम द पी लेफ्ट साइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव, तो इसको हमने माइनस यू रख दिया। तो ये सारी चीजें हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, देखिए माइनस वी माइनस माइनस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू दिस माइनस वी अपॉन प्लस माइनस यू, बराबर, ये रख दिया, माइनस माइनस कट गया, तो ये इक्वेशन बन गई v माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू। अब इसमें जो है डिवाइड कर दो, v अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू v अपॉन यू हो गया, और 1 को इधर लेके आओ तो हो गया v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन यू, राइट। अब v से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को v से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v, ये देखो, और ये भी कट गया, 1 अपॉन यू आ गया, एंड दिस इज अ मिरर इक्वेशन भाई लोग, और ये ट्रू है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि रे डायग्राम बनाने के जो रूल्स हैं ये बना कैसे दिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सी दिस फिगर, ये देखिए अभी दिख रहा होगा आपको बड़ा बड़ा फिगर, ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए हमने पकड़ लिया, पॉइंट ए से एक पैरेलल रे चलाई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस एंड इट विल गो स्ट्रेट
उसके बाद हमने दूसरी रे चलाई, ये सी से चलाई। ये देखिए ए से एक रे गई, किधर गई, सी की तरफ गई। अब सी की तरफ जा रही है तो ये तो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, मतलब 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रे वापस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। सी से जाने वाली रे वापस से रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते से चली जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वापस। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ भाई, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये जो रे आ रही है एम डी रे, एम डी जो रिफ्लेक्टेड हो रही है और इधर से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो इधर जा रही है, दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है। इसके लिए ये ए पॉइंट की इमेज बन जाएगी भैया ए डैश। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली ए पॉइंट से ही रे चलेंगे, ऐसा नहीं है, इसके हर एक पॉइंट से ए से बी तक लाखों पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट से ऐसे ही रेस चलेंगी और वो सारे के सारे इंटरसेक्शंस जो है, जैसे बी से रे चलाएंगे ना तो बी का इमेज बी डैश पे आएगा, और ए और बी के मिड पॉइंट से रेस चलाएंगे तो वो ए डैश बी डैश के मिड पॉइंट पे आएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के पास इमेज बनती है, तो मतलब ए का इमेज बन गया ए डैश, बी का इमेज बन गया बी डैश, और ए बी के मिड पॉइंट का इमेज बन गया ए डैश बी डैश के मिड पॉइंट पे, एंड सो फॉर अदर पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखिए एक और रे चला दी है इसने, ए से रे चलाई, ए से रे चलाई तो कहाँ पे गई, ए से रे गई सीधे पोल पे गई, और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये इसी पॉइंट से पास होगी। ठीक है, इसी पॉइंट से पास होगी ये रे। तो ये जो है रे डायग्राम बनाने के रूल्स आपको पता होने चाहिए, एंड इट हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। एक जो रेशियो होता है ना कि इमेज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, आपको मालूम है कॉनकेव मिरर की एक स्पेशल पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, पता है ना, सेम साइज बनती है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ा देते हैं मिरर की तरफ, तो जो इमेज बनती है बियॉन्ड सी बनती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, इमेज इन्वर्टेड बनती है। इस तरह की सारी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोन एज द मैग्निफिकेशन। Here we will talk about the linear magnification, क्योंकि कोई भी चीज 3 डायमेंशन में भी हो सकती है ना, यहाँ पे एक लीनियर ऑब्जेक्ट है इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की गई है। What is linear magnification? Height of the image upon height of the object, h dash upon h। ठीक है, अब अगर हमारा ट्राइंगल जो है देखेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आया था, तो देखिए हम ट्राइंगल देख लेते हैं फिर से, कहाँ गया ट्राइंगल। हाँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इन दोनों में देखिए हाइट ऑफ इमेज भी आ रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ रही है, तो उससे रिलेट हो जाते हैं u और v। हमारे पास जो रिलेशन आया था ये वाला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन दोबारा से इसको ले लिया है। तो देखिए b डैश a डैश अपॉन बी ए, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू b डैश p अपॉन बी पी, मतलब v एंड u। ठीक है, सी द फिगर करस्पॉन्डिंग फिगर। तो हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज उल्टा इमेज बना है, आपने देखा अभी कैसा इमेज बना है बच्चों, ये देखो उल्टा इमेज बना है। तो हम जो है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस एच डैश लिखा जाएगा, और इसकी हाइट एच है तो पॉजिटिव एच लिखा जाएगा, और ये v एंड u दोनों के साइन माइनस में आएंगे। सो विद द साइन कन्वेंशन वी विल राइट हियर, सी हियर, साइन कन्वेंशन के साथ में इस इक्वेशन में अगर हम पुट अप करेंगे वैल्यूज, तो माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू आएगा। एंड मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड है, एच डैश अपॉन एच से डिफाइंड है, तो एच डैश अपॉन एच यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस वी अपॉन यू मिलेगा। सो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हो गया,
क्या? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन के बारे में हम आगे और भी बातें करेंगे और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, until then, goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.